Hello student, today I am going to discuss part 9 of Principles of Inheritance and Variation. In this part we will discuss about the chromosomal aberrations or mutation. Chromosomal aberration takes place due to change in number and arrangement of genes in the chromosome. So it is because of the change in number and arrangement of genes in the chromosomes. They are of two types. Intrachromosomal aberration means the change in number and genes takes place within a chromosome, and interchromosomal aberration, it means that they are either two homologous or non-homologous chromosomes are involved. So intrachromosomal aberration are of three types: deficiency, deletion and inversion. Interchromosomal aberration are of two types: duplication and translocation. First, we will discuss about the intrachromosomal aberration. First one is the deficiency. It is the loss of terminal segment of the chromosome and is produced by a single break in the chromosome. Here, two important points to note: that here the removal of a part of the chromosome takes place from the end of the chromosome, and here a single break takes place. For example, in this case, this and this one is the sequence of two homologous chromosomes. Here you can see that A, B, C, D, E, F. Here G and H are missing. So there is a removal of any part of the chromosome from the end of the terminal end of the chromosome is called deficiency. So here you can see that complete part is here, but in this part this G and H is missing. Next part is the deletion. It is a loss of intercalary segment of chromosome which is produced by a double break in the chromosome followed by union of the remaining part. What happens here that now the difference between deficiency and deletion, in both the part there is a loss of a part of the chromosome is taking place, but here the loss of part of the chromosome takes place from the at the end of the chromosome, and here intercalary segment, यानी यहाँ पर किसी भी क्रोमोजोम्स के एंड पर से उसका पार्ट ब्रेक होकर उसका लॉस हो रहा है, और यहाँ पर क्रोमोजोम के बीच में से कोई सा पार्ट आप इस केस में देख सकते हैं। यहाँ पर जो ए बी सी डी ई एफ जी एच इस क्रोमोजोम के टर्मिनल एंड पर प्रेजेंट थे, ये यहाँ से मिसिंग है, डिलीट हो गया है। तो इस तरह के डिलीशन या लॉस को हम डेफिशिएंसी कहते हैं। इस केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिलीशन हुआ है या रिमूवल या लॉस हुआ है ये क्रोमोजोम के बीच में से हो रहा है, और यहाँ पर D is removed from this part. Here D is present in the homologous chromosome. In this chromosome of the homologous pair, D is missing. So deficiency, loss of terminal segment of the chromosome, this is from the end of the chromosome, and loss of intercalary segment of the chromosome is called deletion. Next is inversion. It is a type of chromosomal aberration in which part of the chromosome segment get inverted by 180 degree. In chromosome A, B, C, D, E, F, G, H, here the actual sequence of the different genes on this chromosome is this. If this part C, D, E gets inverted to produce a chromosome A, B, E, D, C, here you can see कि this part is inverted. E इधर आ गया है और C इधर आ गया है, तो इसको हम E, D, C कहेंगे, ये E, D, C हो जाएगा। तो इस तरह अगर 180 डिग्री इन्वर्जन हो रहा है तो इसको हम इन्वर्जन टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबेरेशन कहते हैं। Here you can see that they are of two types: paracentric inversion and pericentric inversion. Paracentric inversion is one which does not include centromere. Here you can see that this part is the centromere,
and inversion taking place in this arm and it exclude सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, ये सेंट्रोमियर के एक साइड की आर्म में हो रहा है. यहाँ पर जो एक्चुअल सीक्वेंस है इस क्रोमोजोम में A B C D E, लेकिन इन्वर्जन के बाद B नीचे आ गया है और D ऊपर चला गया है, यानी यहाँ पर 180 डिग्री का इन्वर्जन हो गया है. और इसके बाद जो ये क्रोमोजोम है A D C B, ये पार्ट जो है इन्वर्ट होने के बाद ये पार्ट उल्टा हो गया. इन्वर्जन का मतलब है एक उल्टा सीक्वेंस यहाँ पर डेवलप हो जाता. दूसरा पेरीसेंट्रिक है. पेरीसेंट्रिक का मतलब है कि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है. देखिए यहाँ पर सेंट्रोमियर ये है, यहाँ पर सेंट्रोमियर ये है और यहाँ भी इन्वर्जन हो रहा है. ये सेम उसी टाइप का इन्वर्जन है लेकिन बीच में सेंट्रोमियर आ रहा है, इसलिए इसको पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन कहेंगे. यहाँ पर सेंट्रोमियर नहीं आ रहा है इस सीक्वेंस में जहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, इसलिए इसको पैरासेंट्रिक कहेंगे. तो यहाँ पर D E F है और ये अगर इन्वर्ट हो जाएगा तो F ऊपर चला गया है, D नीचे, यानी 180 डिग्री इन्वर्जन हो गया है. और जो आफ्टर इन्वर्जन जो क्रोमोजोम होगा वो इस तरह का होगा A B C F E D. तो यहाँ पर 180 डिग्री इन्वर्जन हो रहा है, तो इसको हम इन्वर्जन टाइप ऑफ क्रोमोजोमल एबरेशन कहेंगे. Next is the interchromosomal aberration. Interchromosomal aberration means the changes takes place between the two homologous chromosomes. दो क्रोमोजोम्स के बीच में अगर कोई चेंज हो रहा है तो इसको इंटरक्रोमोजोमल एबरेशन कहेंगे. जो फर्स्ट टाइप है ये डुप्लीकेशन है. डुप्लीकेशन मीन्स एक कॉपी यहाँ पर और बन जाती है, डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है. तो इट इज़ ए फिनोमेना ऑफ हैविंग ए एक्स्ट्रा chromosome segment attached to its normal homologous chromosome so that a gene or a set of gene is represented twice in the same chromosome. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोजोम का एक नॉर्मल क्रोमोजोम है A B C D E F G H, but here you can see that this CD is डुप्लीकेटेड. यहाँ पे ये दो बार ये प्रेजेंट है, तो CD में यहाँ पर डुप्लीकेशन हो रहा है. तो दिस पार्ट इज डुप्लीकेटेड इन वन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम. तो इट इज इंटरक्रोमोजोमल एबरेशन. इफ ए न्यू सेगमेंट गेट्स अटैच्ड टू द रीजन ऑफ द सिमिलर सेगमेंट, द डुप्लीकेशन इज कॉल्ड टैंडम रिपीट. यहाँ पे क्या है कि जो डुप्लीकेटेड पार्ट है अगर सेम सेगमेंट में वो रिपीट हो रहा है, यानी यहाँ पर CD इस तरह से कई बार अगर ये रिपीट होता है तो इसको हम टैंडम रिपीट कहते हैं. हियर ए लूप और बकल अपीयर इन द रीजन ऑफ डुप्लीकेशन इफ सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन द क्रोमोजोम विद द डुप्लीकेटेड सेगमेंट एंड नॉर्मल क्रोमोजोम. यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम एक नॉर्मल क्रोमोजोम बनाएं और इसमें A B C D E F G and H, ये A B C D E F G and H, इसका जो होमोलोगस क्रोमोजोम है यहाँ पर डुप्लीकेशन हो गया है. तो इसका जो A है वो अपने होमोलोगस पार्ट से बाइंड होगा, अटैच होगा A एट द टाइम ऑफ सिनेप्सिस. जब ये सेल डिवाइड होगा या मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो ये इससे अटैच होगा, B से अटैच हो जाएगा, C से अटैच हो जाएगा, D से अटैच हो जाएगा. इसी तरह से E से अटैच हो जाएगा, F से अटैच हो जाएगा, G से अटैच होगा और H जो है H से अटैच होगा. लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा जो CD है ये क्या होगा, इट मेक्स ए लूप हेयर. यानी यहाँ पर C और D जो है, क्योंकि इसका कोई कम्प्लीमेंट्री पार्ट यहाँ नहीं है, एक C और D तो यह एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेटेड पार्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो इसका कोई कम्प्लीमेंट्री पार्ट ये नहीं है. तो ये को हम बकल या लूप कहते हैं. इस सिनेप्सिस के वक्त यहाँ पर एक लूप बनकर आता है. जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ ए लूप और ए बकल. नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन.
It is a separation of chromosomal segment and its union to a non-homologous chromosome. ट्रांसलोकेशन इज ऑफ टू टाइप, सिंपल एंड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी एक क्रोमोजोम का कोई सेगमेंट उसके दूसरे होमोलोगस क्रोमोजोम के साथ अटैच हो रहा है या एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फर्स्ट वन इज द सिंपल ट्रांसलोकेशन। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन वन क्रोमोजोम शो डिलीशन or deficiency, while a non-homologous chromosome comes to have an additional segment. Here in this figure, this is simple translocation. Here you can see that B and C, the deletion taking place here, ये part delete हो रहा है and this part is added in this region, the homologous chromosome में ये add हो रहा है। तो A, D, E, F, B, C, G, H. So this part is added to the another part of the homologous chromosome. So this is simple translocation. Next is the reciprocal translocation. In this type of translocation, two non-homologous chromosomes exchange their segments. They exchange their segments between themselves. For example, here one example is given that these are the two homologous chromosome. This is first chromosome and second chromosome, and you can see that same type of genes are present on these two chromosomes. So A, B, C, D, E, F, G, H and I, J, K, L, M, N, O, P. So this part and this part are the homologous chromosome. So यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये पार्ट है और ये पार्ट है, ये एक्सचेंज हो रहा है। ये पार्ट इधर आ जा रहा है ट्रांसलोकेट होकर और ये पार्ट इधर आ जा रहा है। तो इस तरह के ट्रांसलोकेशन को हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब ट्रांसलोकेशन के बाद ये क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ ओ पी, क्योंकि ये वाला पार्ट इधर आ गया है और ये वाला पार्ट इधर आ गया है, तो जी एच। Here in this figure you also can see that this is non-reciprocal interchromosomal translocation. In this part you can see that a simple translocation is taking place. This part is deleted from here. These are the two homologous chromosomes. So this part is deleted from here and added to the second chromosome of the homologous pair. So you can see that this sequence is A, B, C, D, E, F, G, H. Here A, D, B, C is deleted from here. यहाँ से B, C delete हो गया है और यहाँ पे M, N, O, P, Q, R, S, Q, R, और ये जो deleted part था ये कहाँ पर ऐड हो गया है, M और N के बीच में ऐड हो गया है। तो ये पार्ट जो है इसको हम इस तरह के ट्रांसलोकेशन को सिंपल ट्रांसलोकेशन कहते हैं, जिसमें एक क्रोमोजोमल पार्ट ब्रेक होता है और दूसरे होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में कहीं पर भी इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरह के ट्रांसलोकेशन को हम सिंपल ट्रांसलोकेशन कहेंगे। नेक्स्ट इज द रेसिप्रोकल इंटरक्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन। हियर एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम टेक्स प्लेस। फॉर एग्जांपल दिस पार्ट ए एंड बी and homologous chromosome का M and O. This part is deleted here from here and added to the first chromosome, and this part is transferred to the second chromosome. So here you can see there is an exchange of part of the chromosome is taking place. M and O is added to the first chromosome and A and B is added to the another chromosome of the homologous pair. So this is the difference between simple and रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि किसी भी होमोलोगस पेयर के एक क्रोमोजोम का पार्ट ब्रेक होता है और वो दूसरे क्रोमोजोम में जाकर अटैच हो जाता है उस होमोलोगस पेयर के, तो इसको हम सिंपल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इधर से ये पार्ट निकलकर दूसरे क्रोमोजोम में जाकर ऐड हो रहा है। यहाँ पर एक्सचेंज अगर हो रहा है तो इसको हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहेंगे, यानी ये वाला येलो वाला पार्ट इस क्रोमोजोम में जा रहा है और रेड वाला पार्ट इस क्रोमोजोम में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम इज टेकिंग प्लेस। तो इस तरह के रेसिप्रोकल को हम
इस तरह के ट्रांसलोकेशन को हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं।